ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں اس خبر کے ساتھ کہ وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق نے سال 2026 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کے حوالے سے خصوصی پیغام جاری کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مہم 2 سے 8 فروری تک جاری رہے گی، جس کا ہدف 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے محفوظ بنانا ہے۔ 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ عائشہ رضا فاروق نے والدین اور کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو ورکر سے بھرپور تعاون کو یقینی بنائیں اور ہر مہم میں بچوں کو قطرے ضرور پلائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی ادارے پولیو کے خاتمے کے لیے مکمل یکجہتی سے کام کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ عوامی تعاون پولیو کے خاتمے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور علماء کرام اور میڈیا آگاہی مہم میں مؤثر کردار ادا کریں۔ عائشہ رضا فاروق نے اختتام میں کہا کہ آئیے ہم سب مل کر پولیو کو شکست دیں اور صحت مند پاکستان یقینی بنائیں۔ سانحہ، کراچی کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں کی حفاظت کے لیے بڑا اقدام اٹھایا اور بجلی کے محفوظ انفراسٹرکچر کو یقینی بنانے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکر نے کی، جس میں کمشنر لاہور مریم خان، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق، لیسکو چیف رمضان بٹ اور دیگر اعلیٰ حکام نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں لاہور میں بجلی کی تقسیم کے نظام اور حفاظتی خطرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے پر غور و خوض کیا گیا۔ صوبائی وزیر توانائی نے 4 ورکنگ گروپس تشکیل دیے: کور گروپ، مانیٹرنگ گروپ، کیبل اینڈ انٹرنیٹ سروس گروپ اور کنزیومر اینڈ کمرشل گروپ۔ انہوں نے تمام اداروں کو مؤثر رابطہ قائم رکھنے کی ہدایت کی اور ورکنگ گروپس کے ساتھ سوشل میڈیا گروپ بھی بنانے کا اعلان کیا۔ چاروں گروپ 26 جنوری تک اپنی حتمی تجاویز پیش کریں گے، جسے 27 جنوری کو اسٹیئرنگ کمیٹی کی اسکروٹنی کے بعد 28 جنوری کو وزیر اعلیٰ کو الیکشن پلان کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ انڈس ہائی وے پر کار اور ڈمپر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے 8 افراد کو ان کے آبائی قبرستان حیدرآباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ گزشتہ رات کوٹری بھلاری گندم کے گودام کے قریب یہ حادثہ پیش آیا، جس میں 4 خواتین اور 2 بچے بھی شامل تھے۔ جب میتیں ان کے گھر پہنچی تو علاقے میں کوہرام مچ گیا اور اہل خانہ شدید صدمے میں مبتلا ہو گئے۔ نماز جنازہ اور تدفین میں صوبائی مشیر بحالی عبدالجبار خان، ٹاؤن چیئرمین راجہ والی، سیاسی اور سماجی رہنما اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ حادثے کے شکار افراد کو انڈس پہاڑی کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا اور علاقے میں سوگوار ماحول قائم رہا۔ کمشنر سکھر ڈویژن عابد سلیم قریشی نے سکھر میں جاری سرکاری تعمیراتی منصوبوں کا دورہ کیا اور مختلف ترقیاتی کاموں کی پیش رفت اور معیار کا جائزہ لیا۔ کمشنر سکھر نے گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹل کے قریب میڈیکل طلبہ کے لیے زیر تعمیر ہاسٹل کا معائنہ کیا، جہاں متعلقہ حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ منصوبے کا 50% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے۔ بعد ازاں کمشنر سکھر نے گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول میں زیر تعمیر گرلز لائبریری کا بھی دورہ کیا۔ حکام کے مطابق لائبریری کا 90% سے زائد تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا۔ کمشنر سکھر نے تعمیراتی کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئی لائبریری طالبات میں علم و مطالعے کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی ہدایت پر وادی تیرہ سے آنے والے آئی ڈی پیز کے لیے قائم نئے رجسٹریشن سینٹرز میں منظم اور باعزت انداز میں رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جہاں ضلع انتظامیہ خود نگرانی کر رہی ہے۔ باڑہ میں مختلف اقوام کے لیے علیحدہ کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ رجسٹریشن مراکز مکمل طور پر فعال کر دیے گئے ہیں۔ کاؤنٹرز پر ضلعی محکموں، قبائلی مشیران، نادرا، نجی بینک اور زون کا عملہ تعینات ہے۔ پولیو ویکسینیشن ریکارڈ اور قبائلی مشیران کے ذریعے ویریفیکیشن کے بعد دیگر مراحل مکمل کیے جا رہے ہیں۔ پائندہ چینا سمیت تمام مراکز پر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے، تو دوسری جانب وادی تیرہ میں خوراکی سامان، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی جاری ہے، جبکہ کلیئرنس آپریشن تاحال جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر خیبر کیپٹن ریٹائرڈ بلال شاہد راؤ دیگر انتظامی افسران کے ہمراہ آپریشن کی نگرانی کے لیے وادی تیرہ میں موجود ہیں۔ آگے بڑھیں اور بات کریں کہ راولپنڈی میں ہائی رائز عمارتوں کی تعداد مجموعی طور پر 163 ہے، تاہم ان میں ایک نجی عمارت فائر سیفٹی معیار کے مطابق محفوظ ہے۔ بعض عمارتوں میں فائر سیفٹی انتظامات نامکمل ہیں، جبکہ بعض نجی عمارتوں میں قانونی حفاظتی ضوابط پر عمل ہی نہیں ہو رہا۔
सानहा गुल प्लाजा के बाद रावलपिंडी इंतजामिया ने खुद से आग बुझाने के खुदकार निजाम से महरूम मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे रावलपिंडी से फैसल अहमद सती की इस रिपोर्ट में। पंजाब कम्युनिटी बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस एक्ट के मुताबिक रावलपिंडी में हाई राइज इमारतों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में तकसीम किया गया है। कैटेगरी डी में शामिल 151 इमारतों में फायर सेफ्टी, हाइड्रेन और इमरजेंसी एग्जिस्ट का कोई इंतजाम नहीं। कैटेगरी ए, बी, सी में शामिल 12 इमारतों में से 11 में फायर सेफ्टी के इंतजाम नामुकम्मल हैं। कि एक डेडलाइन मैंने अपनी टीम को दी है कि उस वक्त तक जो है वो इनके तमाम स्टैंडर्ड्स सेफ्टी के चेक कर लिए जाएं। जहां कमी बेशी है उनको आगाह कर दिया जाए। उसको ओनर ने ही मीट करना है, ओनर उसको मीट करे। इमरजेंसी सर्विसेज एहकाम के मुताबिक बेसमेंट समेत 50 फुट से ज्यादा तमीर होने वाली इमारतें हाई राइज इमारतों में शुमार होती हैं। नई तमीर होने वाली इमारतों के लिए महकमा एनवायरनमेंट, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का NOC लाजमी है। मुतलका महकमों से NOC लेने के लिए इमरजेंसी एग्जिटेशन, फायर सप्रेशन और हाइड्रेन की तनसीब भी लाजमी है। इमरजेंसी काम के मुताबिक हंगामी सूरताल में वासा रावलपिंडी का किरदार बहुत अहम है। पिछले साल 2025 में 1700 से ज्यादा फायर इंसिडेंट्स जो हैं रावलपिंडी में रिपोर्ट हुए हैं, जिन पे औसत 8 मिनट के रिस्पांस टाइम में जो है वो रिस्पांस किया गया है। शोबे प्लानिंग के ऑफिसर मोहम्मद सोहेल असलम कहते हैं नक्शा तभी पास होता है जब रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और महकमा एनवायरनमेंट की NOC फाइल में शामिल होते हैं। जिम्मेदार 1122 है और सिविल डिफेंस है। हम ये इंश्योर करते हैं एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ प्लान कि जो कंसर्न अदारे हैं हम उनसे NOC लेते हैं। कराची में सानिया गुल प्लाजा के बाद रावलपिंडी में पंजाब हुकूमत के सख्त हदायत पर इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन के जिम्मेदार इदारे तो मुतरक हो गए हैं, लेकिन रावलपिंडी में 163 इमारतों में से सिर्फ एक इमारत सेफ्टी मियार पर पूरा उतरती है। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, 5 न्यूज, रावलपिंडी। करेंगे मरी में वाइल्ड लाइफ पार्क के तामीराती काम में शामिल मजदूरों के कमरे में मुतादिद अफराद बेहोश हो गए। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिलते ही नजदीकी रिसोर्सेज फौरी तौर पर मौके पर रवाना कर दी गईं। शदीद बर्फबारी, राब्ते की मुश्किलात और मुश्किल मौसमी हालात के बावजूद रेस्क्यू स्टाफ बर वक्त पहुंचा और 43 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद दी, जिसके बाद उनकी हालत बेहतर हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकया बंद कमरे में सर्दी से बचाव के लिए गैस हीटर और लकड़ियां जलाने की वजह से पेश आया। हाईवे मशीनरी ने लिंक रोड की बहाली का काम फौरी किया और वाकये की इत्तला सेंट्रल कंट्रोल रूम, महकमा हाईवे और ट्रैफिक पुलिस को भी दे दी गई थी। खैरपुर सिंध की तीसरी बड़ी मादरे आलमी शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में जाली डिग्रीज का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जाली डिग्रियां हासिल करने वाले 31 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया है। यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट कंट्रोलर की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक मुलजमान ने जालसाजी के जरिए जाली डिग्रीज तैयार की और उन्हें मुलाजमत के हुसूल के लिए मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में जमा करवाया। इंतजामिया का कहना है कि जाली डिग्रीज का ये अमल यूनिवर्सिटी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। डिप्टी कमिश्नर नुशैर फिरोज अरसलान सलीम के अहकामात पर मुकामी फ्लोर मिल्स की जानिब से सस्ते आटे की फरोख्त के लिए स्टॉल कायम कर दिया गया। स्टॉल का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मोरो मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में इलाका मकीनों ने सस्ते आटे की खरीदारी की। आटा खरीदने वाले शहरियों का कहना है कि वो सिंध हुकूमत और महकमा खुराक के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने महंगाई के इस दौर में सस्ते आटे की फराहमी को मुमकिन बनाया। हिना फ्लोर मिल के मालिक शुहेब अली चन्ना ने कहा कि सिंध हुकूमत, महकमा खुराक, डिप्टी कमिश्नर नुशैर फिरोज और असिस्टेंट कमिश्नर मोरो की हिदायत पर यह स्टॉल कायम किया गया, जहां आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। मीरपुर माथेलो में ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाला ऑल मीरपुर माथेलो प्राइवेट स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट आज कामयाबी के साथ अख्तिताम पसीर हो गया। फाइनल मैच लीडर पब्लिक स्कूल और सोना पब्लिक स्कूल के दरमियान खेला गया, जिसमें सोना पब्लिक स्कूल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए लीडर पब्लिक स्कूल को 5 रन से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फाइनल मैच की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर गोड की मंजूर अहमद कुंडरानी और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नईम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में तलबा की जानिब से खूबसूरत टैबलोज भी पेश किए गए। खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर गोड की मंजूर अहमद कुंडरानी ने कहा
کہ کھیلوں کی سرگرمیاں طلبہ کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ایسے مقابلے نظم و ضبط اور ٹیم ورک کو فروغ دیتے ہیں. FCC کے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد نعیم نے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں کا کھیلوں کے فروغ میں کردار قابل تحسین ہے اور FFC نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی جاری رکھے گی. پرنسپل سونا پبلک اسکول محمد وسیم نے مہمانوں اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سونا پبلک اسکول تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے. اسکردو سمیت بلتستان کے چاروں اضلاع میں برف باری. اسکردو شہر نے سفید چادر اوڑھ لی. اسی پر دیکھتے ہیں وزیر یحییٰ کی یہ رپورٹ. اسکردو سمیت بلتستان کے چاروں اضلاع کے نشیبی اور بالائی علاقوں میں رات گئے شروع ہونے والی برفباری وقفے سے جاری ہے. برفباری کے باعث اسکردو شہر نے سفید چادر اوڑھ لی ہے جس سے علاقے کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے اور مناظر سیاحوں کے لیے دیدہ زیب بن گئے ہیں. طویل خشک موسم کے بعد برفباری سے قحط سالی کا خطرہ ٹل گیا ہے. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک گلگت بلتستان کے مختلف بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے. محکمہ موسمیات اور ضلعی انتظامیہ نے مسافروں اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی ہے جبکہ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے. برفباری کے باعث اسکردو اور دیگر بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. وزیر یحییٰ 5 نیوز بیورو چیف اسکردو. آگے بڑھے بات کریں کہ شہید بے نظیر آباد پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے بین الصوبائی موبائل فون اسمگلنگ میں ملوث گینگ کو بے نقاب کر دیا ہے جبکہ 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. SSP شہید بے نظیر آباد شبیر احمد سٹھار کی خصوصی ہدایت پر پولیس کی ٹیکنیکل ٹیم اور CIA پولیس نے مشترکہ اور مؤثر کارروائی کی ہے. دادو میں انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا افسوسناک واقعہ. کینسر کے مریض کی موت کا بدلہ تعویذ ٹونے کی توہم پرستی پر ایک معصوم 4 سالہ بچے کی جان لے کر لیا گیا. مزید تفصیلات دادو سے چینل 5 نیوز کے رپورٹر اللہ بخش خوش کی اس رپورٹ میں. کے نواحی گاؤں دانو چانڈیوں میں ثقافت کی انتہا دیکھنے میں آئی ہے جہاں تعویذ ٹونا کے بے بنیاد شعبے پر ملزمان نے پڑوسی کے 4 سالہ معصوم بچے ساجد چانڈیوں کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے. کینسر عیسائی دسی ڈاکٹر جواب دنو وری ظلم کرے من او پنج موت مو بھگایا مجھے گھر میں ظلم کرے مجھے ہاتھن میں پورے مجھے بچوں مارے. پولیس کے مطابق چند روز قبل ایک شخص کینسر کے باعث جاں بحق ہوا تھا جس کے بعد ملزمان نے اس موت کا الزام تعویذ ٹونا پر عائد کرتے ہوئے شدید اشتعال میں آ کر معصوم بچے کو نشانہ بنایا. ان لوگوں کو شک تھا کہ ان کو تعویذ ٹونا کیا ہے ان کے اپنے ہی چچا زاد بھائیوں نے. تو جیسے وہ بندہ مرا تو ان لوگوں نے ادھر گھر میں گھس گئے تو بچہ جو ان کو ملا 3-4 سال کا جو کہ ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا ہے ساجد نامی اس کو فائر کر کے قتل کیا. جھلو تھانہ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 5 روز کے بعد کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. واقعے کے بعد دادو کے شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تعویذ ٹونا جیسی جہالت اور توہم پرستی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کسی اور ساجد کو ایسے بے رحمانہ موت کا سامنا نہ کرنا پڑے. علامہ خوش، نمائندہ 5 نیوز.
मोटेवे पुलिस M4 ने चक झमरा के करीब बड़ी कार्रवाई करते हुए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। तर्जमान मोटेवे पुलिस सेंट्रल रीजन के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुनशियात से भरी एक गाड़ी को रोक कर तलाशी ली गई है, जिसके नतीजे में भारी मिकदार में मुनशियात बरामद हुई है। तर्जमान के मुताबिक इस कामयाब कार्रवाई में DSP इफ्तिखार और इंस्पेक्टर जाफर अली और अनम एतजाज ने हिस्सा लिया है। कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान अकबर खान, नदीम खान और जियाउर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जामशोरो के कोहिस्तान इलाके मोड़ो जबल में अरब शिकारियों के मुबैना गैर कानूनी शिकार के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया और शिकारियों के लिए रास्ते बंद कर दिए। वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। इलाका मकीनों के मुताबिक अरब शिकारियों ने सरेआम 7 नायाब तिलोर परिंदों का शिकार किया, जिस पर मुकामी आबादी में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाका वाइल्ड लाइफ कवानीन के तहत महफूज है, इसके बावजूद गैर कानूनी शिकार जारी रहा। गुजरात में सुथरा पंजाब और तजावुजात का खात्मा कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गया है। 4 माह से ज़ायद अरसे गुजर जाने के बावजूद भी नाजायज़ तजावुजात वाली जगह पर अंदरूने शहर में पड़ा कचरा इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। गुजरात में सुथरा पंजाब और नाजायज तजावुजात का खात्मा कागजी कार्रवाई तक महदूद है। गुजरात अंदरूने शहर में सरकारी रकबे पर रखे गए खोखे तो हटा दिए गए, अगर 4 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद अंदरूने शहर में पड़ा कचरा नहीं उठाया गया, जो मुकीनों के लिए सरदर्द बन चुका है। अक्सर औक़ात शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। रात की मेन शहर आप इस वक्त खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे कूड़ा पड़ा हुआ है। 10 से 15 दिन हो गए हैं इस कूड़े को उठाने के लिए कोई बंदा भी रजामंद नहीं है। हम लोग बादशाह के पास, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास भी गए हैं, RR के पास भी गए हैं, लेकिन यहाँ पे किसी बंदे को आने की तौफीक नहीं है। कोई बंदा ये कूड़ा उठाने नहीं आ रहा। इसकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, ताउन फैल रहा है। और मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज से अपील है कि कम अज़ कम साफ़ सुथरा पंजाब का जो लेबल लगाया उन्होंने, उस साफ़ सुथरा पंजाब को साफ़ करें भी और ये कूड़ा उठवाया जाए। 10 दिनों से यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। हम लोग दरखास्तें दे दे के RR को, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और बादशाह को थक चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस कूड़े को उठाने को तैयार नहीं है। हम वज़ीर आला मरीम नवाज से दरखास्त करते हैं कि जो आपने प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया हुआ है उसको यहाँ पे फाल किया जाए और इस कूड़े को यहाँ से उठवाया जाए, ताकि बदबू और तफन से आवाम की जान छूट सके। इंतजामिया के बार बार नोटिस में लाने के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात से मुतालबा किया है कि अंदरूनी शहर से फौरी तौर पर पड़ा कचरा उठवाया जाए। कैमरा टीम के साथ सईद फरख अब्बास, 5 न्यूज़ गुजरात। जैकबाबाद में थाना एयरपोर्ट पुलिस नफरी ने सूफी सचल रोड पर मुबैना तौर पर शराब फरोशी में मुलविस एक अड्डे पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान भारी मिकदार में शराब बरामद करके तहवील में ले ली गई। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई से कबल मुबैना मुलजिम एहसान मुगल मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। DSP सतीक खुदाबख्श ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शहर में समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए पुलिस हसास इदारों के साथ मिलकर मुश्तरका और मौसर कार्रवाइयां कर रही है। उबाड़ो के करीब नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के दरमियान खौफनाक तसादुम पेश आ गया है, जिसके नतीजे में एक नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। हादसा इस कदर शदीद था कि दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां बुरी तरह तबाह हो गई हैं। इत्तला मिलती ही रेस्क्यू टीमें और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई हैं और जाँ बहक और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शिकारपुर के इलाके लखी गुलाम शाह में डाकुओं के हाथों शहीद होने वाले SHO कमीसो खान ब्रोही के कत्ल का मुकदमा इंदराज कर दिया गया। मुकदमा लखी थाने में सरकारी मुद्दत में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। FIR में जुनेजा गैंग, कहरानी जतोई गैंग, मकटीजा और खरोज गैंग के मुल्जिमान को नामजद किया गया। पुलिस के मुताबिक FIR 10 नामजद और 8 नामालूम अफराद पर दर्ज की गई, जबकि नामालूम मुल्जिमान की शनाख्त के लिए तहकीकात जारी हैं। मलका कौसार मरी में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाली बर्फबारी के बाद आज मौसम इंतहाई सर्द और खुशगवार हो गया है। बर्फबारी के बाद धूप निकलने से मरी का हुस्न मजीद दिलकश हो गया है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सयाहों की बड़ी तादाद मरी और गिलियात का रुख कर रही है। सयाह कुदरती हुस्न और ताज़ा बर्फ से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ज़िला इंतजामिया ने
17 मील के मकाम से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी है और हर किस्म की आमदोरफ्त की इजाज़त दे दी गई है। सड़कों की सफाई का अमल मुसलसल जारी है और डिप्टी कमिश्नर मरी तमाम सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। DPO मरी रजा तनवीर सुप्रा भी सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी में मसरूफ हैं, जबकि पुलिस, हाईवे और दीगर इदारे अलर्ट है। इंतजामिया ने सयाहों और शहरियों से अपील की है कि वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करें ताकि उनका क़याम महफूज और खुशगवार रहे। कबीरवाला के नवाही इलाके खालकाबाद पेट्रोलिंग चेक पोस्ट पर जदीद पुलिस खिदमत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जिसका मकसद शहरियों को फौरी, शफाफ और मयारी पुलिस सहूलियात फराहम करना है। इफ्तिताही तकरीब में सियासी पुलिस हुक्काम के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस खिदमत सेंटर का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी बैरिस्टर चौधरी उसामा फजलुर रहमान MPA और DSP मोहम्मद वसीम ने फीता काट कर किया। इस मौके पर हुक्काम ने बताया कि इस सेंटर के क़याम से शहरियों को FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर परमिट और दीगर कानूनी पुलिस सहूलियात एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। खालिकाबाद और गिरदनवा के देहात के हजारों शहरी अब मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने से बच सकेंगे। हुक्काम के मुताबिक जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम और तरबियत याफ्ता अमला शफाफ और फौरी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की CEO लाहौर कलंदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। बहुत अच्छे दोनों सवाल। पहली बात तो है कि मैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइज़र हूँ और आपके सामने सारी ज़िंदगी गुजरी है, राइट लेफ्ट जितने मैक्सिमम कुछ चंद ही दोस्त होंगे जो जिनकी मेरे साथ उस तरह शनासाई नहीं है। अब आप देखें कि मेरी नज़र के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर 78 साल तारीख की बात कर रहा हूँ, यहाँ हमारे हीरोज़ भी पैदा हुए हैं, लेकिन हीरोज़ जो है ना वो हीरोज़ रहे ना, उन्होंने मिट्टी के साथ मट्टी नहीं हुए। ये वो लाहौर कलंदर है जिसने पूरे पाकिस्तान से वो टैलेंट निकाला जिसके पास जूते नहीं थे, लेकिन उसकी स्पीड 140 से भी ज़्यादा थी, उसको निकाल के हीरे निखारे। तो इसलिए जितना मैं कहता हूँ कोई एक मुझे बता दें कि जितना वेल इक्विप्ड और वेल ऑर्गेनाइज ये लाहौर कलंदर की ऑर्गेनाइजेशन है वो और कोई नहीं है। तो इसीलिए मेरिट की बुनियाद के ऊपर ही इन पे नज़र पड़ी और यही वो काम कर सकते हैं और कोई पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकता। और दूसरा बात आपने कोई पूछी थी वुमेन, बिल्कुल अभी भी मैं वकारण साहब कॉलेज में हॉकी का जो आस्ट्रोटर्फ बिछाया है पूरे पंजाब से बच्चियों का मुकाबला वहाँ पे हुआ है, फाइनल वहाँ पे हुआ है पूरे पंजाब से। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप जो होगा हम बच्चियों को भी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की टीम बनाएंगे इंशाल्लाह। आपको पता है कि फातिमा जना यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्क्वाश कोर्ट है वो भी आपके भाई के फंड से और मैंने बनवाया था। इसी तरीके से आपका जो आस्ट्रोटर्फ है शनाज शेख आस्ट्रोटर्फ वकारण साहब में बच्चियों का एक ही पूरे पंजाब के अंदर, बाकी सूबों का तो मुझे पता नहीं है, अगर पंजाब के अंदर नहीं है तो बाकियों में क्या होगा। पूरे पंजाब के अंदर खवातीन का कॉलेज के अंदर वाहिद कॉलेज के अंदर वकारण साहब कॉलेज के अंदर हॉकी, फुटसेल बहुत सारी 3-4 मैंने बल्कि एक शबाज शिफ पार्क के अंदर और एक सेटलेट टाउन डिग्री कॉलेज के अंदर। इसी तरीके से बाकी चीज़ों स्पोर्ट्स के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, लेकिन मैं उतना ही काम करूँगा ना जितनी मेरा सकत होगी। मेरे ज़िम्मे को अपना स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं है, ये तो मेरा एक शौक़ है और मेरे नौजवानों का जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं रावलपिंडी के, ये मैं बता रहा हूँ ना कि वो आप मेरे जलसों में देखा करें, जुलूसों में देखा करें, मेरी इर्द गिर्द देखा करें तो यंगस्टर बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। तो ये उनका कर्ज था मेरे पे, तो वो चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई टैलेंट कहीं छुपा हुआ है तो लाहौर कलंदर ने जैसे पाकिस्तान से टैलेंट को निकाला है तो वो पिंडी से भी मुझे टैलेंट निकाल के दे दे। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की CEO लाहौर कलंदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि
बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाए खबर दें कि हुकूमत पंजाब के अहकामात पर रेस्क्यू ऑफिस में प्राइवेट एम्बुलेंसेस के रजिस्ट्रेशन और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को बाकायदा सर्टिफिकेट्स भी जारी कर दिए गए हैं और जिसका मकसद इमरजेंसी सर्विस को मुनस्सब, महफूज और मयारी बनाना है। मजीद जानते हैं कानपुर से सलीम मुगल से। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों को बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए रेस्क्यू 1112 खानपुर के ऑफिस में प्राइवेट एम्बुलेंस की रजिस्ट्रेशन का जो है अमल जारी है। इसके क्या गर्ज मकासद में इस वक्त रेस्क्यू ऑफिसर सईद अमीनुल्लाह मौजूद, से हम बात कर सर, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सेक्रेटरी एमरजेंसी डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर साहब का इनिशिएटिव है। इसमें तमाम प्राइवेट एम्बुलेंसों को एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म एक इदारे के अंडर लेके आना है। इसमें दो तरह की कैटेगरी हैं, एक बाकायदा एम्बुलेंस है और दूसरी कैटेगरी है पेशेंट ट्रांसफ़र व्हीकल PTV। तो इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। तो अब तक हमने कुछ एम्बुलेंसों को रजिस्टर कर लिया है और कुछ का प्रोसेस अभी चल रहा है। प्राइवेट एम्बुलेंस के मालिकान से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द हमसे रब्ता करें और अपनी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि रजिस्टर करके इनको बाकायदा इनकी सर्विस का हिस्सा बनाया जा सके। सर ये बताया कि आम शहरियों को कैसे पता लगेगा कि ये जो गाड़ी है एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? जी इसमें बाकायदा जो हम गाड़ी रजिस्टर करते हैं उसमें फ्रंट साइड पे शीशे पे हम स्टिकर लगाते हैं तस्दीकशुदा, और बैक साइड पे भी इसका नंबर प्लेट से ऊपर बैक साइड के शीशे में यह स्टिकर बाकायदा लगा होता है जिससे तस्दीक हो जाती है कि ये गाड़ी रजिस्टर शुदा है। नाज से गुजारिश है कि सिर्फ तस्दीक शुदा एम्बुलेंस को ही अपने ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल में लाएँ क्योंकि तस्दीक शुदा एम्बुलेंस ही महफूज मुंतकली की ज़मानत है। जैसा कि आप रेस्क्यू ऑफिसर की बात सुन का यही कहना है कि आवाम को भी चाहिए कि हमेशा जो है रजिस्टर्ड एम्बुलेंस का इस्तेमाल करें ताकि आपके मरीज को इमरजेंसी सूरत में शिफ्ट करने में जो आसानी हो। जी लाहौर में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ में बेवा खातून पर ससुरालियों के हाथों तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। 48 साल शाजिया जो 3 बच्चों की मां है और घर चलाने के लिए स्कूल में मुलाजमत करती है, उसको देवर और नंदों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया है और घर में कैद करके छोड़ दिया है। जख्मी खातून को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या गाँव 36 SP के इलाके में पेश आया। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद का सबब बेवा शाजिया को उनकी मुलाजमत जारी रखने पर ससुरालियों की नाराजगी थी और मुकदमा दर्ज करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। जलालपुर पीरवाला कई साल कबल शुरू होने वाला लाइब्रेरी मंसूबा खटाई का शिकार। नामुकम्मल इमारत मौजूदा हुकूमत के दावों को मुंह चिराने लगी। ये वो लाइब्रेरी है जो इल्म की रोशनी बांटने के वादे के साथ शुरू की गई थी, मगर आज बद इंतजामी, गफलत और वादा खिलाफी की वाज़ेह तस्वीर बनी खड़ी है। हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन गौरी नामुकम्मल लाइब्रेरी की इमारत में मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी फैसल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला की अकलौती लाइब्रेरी जो तामीर की गई थी काफ़ी अरसा पहले। आजकल वो नामुकम्मल होने के बायस नशइयों की अमाजगाह बन गई है और इसके अलावा जो शहरी इससे मुस्तफ़ीद होना था अब ये बिल्कुल खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनकी राय इस बारे में। जी जी बिल्कुल बेजान, ऐसा है कि तकरीबन कोई 10 साल का अरसा हो गया है। तो ये खंडर नुमा इमारत जो आप देख रहे हैं तो इसमें लाइब्रेरी बननी थी शहरियों के लिए जो कि आज तक नहीं बनेगी। करोड़ों की फंडिंग ज़ाय होगी इसमें। तो इसमें ये है कि AC साहब जलालपुर पीरवाला, DC मुल्तान और CM पंजाब मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ी तवज्जो दें क्योंकि यहाँ पर अपना नशई और आवारा जानवर अपना गधे कुत्ते वगैरह यहाँ पे फिरते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपना इस पर थोड़ी तवज्जो दें ताकि जलालपुर पीरवाला के लोग, क्योंकि हमारी तहसील बहुत पसमानदा है तो ये लोगों की ज़रूरत है, इस वजह से अपना मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने शायरी की बात सुनी। वो कह रहे थे कि इसको फिलफोर मुकम्मल किया जाए ताकि शायरी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी और इसके साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।